ईडी वाले, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, और मैंने पिग नहीं बोला। Saudis hiring all our doctors. डॉक्टर्स को छोड़ो, लोग जा रहे हैं। That you're guilty until you prove yourself innocent. I really give him credit जो हमारे relations Middle Eastern countries के साथ। फिर एक वो सुदेंद्र कुलकर्णी जिन्होंने अडवाणी जी का करियर खत्म कर दिया। By all means, Ram was not a successful king as such. Again, I don't like Kangana. I don't care a damn about Kangana or her opinions. But and she said, she looks at me and she says, "You are the one who talks to my husband in the late night." So I'm like, who's this woman with Karan Johar and saying, and then I realized it. नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट हैं तहसीन पूनावाला। तहसीन इज एन पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड ही सर्टेनली डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन। इनफैक्ट उससे ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत तो मुझे है। इस पॉडकास्ट में हमने करंट पॉलिटिकल सिनेरियो को कंप्लीटली डिस्कस किया। बहुत सारी बातें हुई, राइट फ्रॉम अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट से लेके इलेक्टोरल बॉन्ड्स और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस, सब कुछ डिस्कस हुआ। एंड डिस्पाइट द फ्यू डिसएग्रीमेंट्स दैट वी हैड, I thoroughly enjoyed the conversation, and that was primarily because Tehseen has a very balanced opinions. I am sure you will enjoy this podcast as much as I did. So do listen and enjoy. Also, if you like the conversation, do hit that subscribe button. It's right there, right below. दबा दो उसे। Hi Tehseen. Hi, it's such a pleasure to have you on the show. And you were on the original list of my guests when I conceptualized this podcast and when I wanted to have guests over. And in that list, your name was there because I've been seeing you on TV for quite some time now. And you are all things that men want. Essentially, you are smart, you are handsome, and then you are rich. So, मुझे लगा कि this guy, I should have him on the podcast. And then more importantly, you are reasonable and rational and empathetic, which is a rare quality you generally get to see on those TV boxes में। वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो rich and handsome तो मिल जाते हैं बाकी लोग भी। And finally it's happening. Thank you very much. And I do realize that today Arvind Kejriwal must be keeping you busy. So thank you very much for still making time for this. I much appreciate the same. Thank you, Shamsher, for having me, and I'm glad to know I was on your OG list. Yeah. So thank you so much. And thank you for the kind words you said. And yeah, Arvind ji is the issue with Arvind ji is keeping me busy. But you've come all the way from Rajasthan here to do this for Inspiringly Yours, and I didn't want that we cancel this. Because पहले भी एक दो बार, just for your viewers to know, the timing did not match because there was the farmers' protest. And one thing was when we decided on a date, I think you were traveling at some point. So 2 times the date did not work. And since you'd already come to Delhi, I just wanted to make this happen. So thank you, Shamsher, and thank you for your kindness. Thank you very much. So now that we are talking about Mr. Kejriwal, so let's start from there only. So what are your thoughts on it? यार बहुत गलत किया है। एक मुख्यमंत्री को ऐसे थोड़ी उठाते। यार देखिए, कोई मनी ट्रेल है नहीं। जिस व्यक्ति ने तो इसकी स्टोरी ये है कि आज 1.25 साल से मनीष सिसोदिया जेल में है। तब कहा कि हमारे पास मनी ट्रेल है। फिर संजय सिंह को जेल में डाला, 4 महीने हो गए उनको, 4 महीने से अधिक। फिर कहा कि हमारे पास मनी ट्रेल है। कल केजरीवाल जी के लिए कहते हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर कि कोई मनी ट्रेल नहीं, हमें एस्टैब्लिश करनी है। आप लोगों को जेल में डाल रहे हो। एक दूसरा, देखिए एक चीज़ है फॉर योर व्यूअर्स टू नो एंड सब्सक्राइबर्स टू नो, ईडी में इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट बेल। 10,000 केसेज में से 10-12 केस हो गए जिसमें बेल मिला। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बेल मिलना, बिकॉज ट्विन कंडीशंस आती है ईडी में। पहली कंडीशन, ED reverses the burden of proof. So you're guilty until you prove yourself innocent. Which is like unlike the IPC. Yeah, unlike anything. Democracy में ये हो नहीं सकता. You are innocent until you prove yourself guilty. The burden of proving you guilty is the states. In ED, you are guilty till you prove yourself innocent against the state. But bail hearing में, you don't go into the facts of the matter. So how do you get bail? Because unless you don't go into the facts of the matter, you cannot get bail. So you're not going to the facts of the matter and you're guilty and all the state has to go 100 करोड़ मिल गया, 200 करोड़ मिला नहीं मिला, आप जेल में रहोगे। ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% है। 0.5% कन्विक्शन नहीं होगा, बट द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। साल बाद आप जेल में रहोगे एंड दैट्स अनफेयर। और एक मुख्यमंत्री को ऐसे उठाना, रात को जेल में डालना, आई थिंक इट्स टेरिबल। Though I by and large agree with what you say, he is sitting chief minister, he is like not running away anywhere. My only concern, काफी समन आए थे 9, 10, 12, I don't कितने। No. हाँ, somehow he did not like still made time to appear, which I think he should have. No, he is right. अगर भगवान ना करे
खुदा ना करे, जो भी आप एनर्जी में बिलीव करते हैं, आपको समन आए, आपके किसी भी व्यूअर को समन आए, द समन शुड से हाउ यू बीन कॉल्ड. एक छोटे से पुलिस स्टेशन से भी समन आती है. एक छोटे से पुलिस स्टेशन, छोटे से थाने से एक हमारा एक कांस्टेबल भाई भी अगर, या कांस्टेबल बहन भी बुलाती है, तो आपको बताती है ना कि आपको क्यों बुला रहा है, एज अ विटनेस, एज एन अक्यूज्ड, एज अ अप्रूवर. इट्स योर फंडामेंटल राइट टू नो. आप मुख्यमंत्री को 9 बार कह रहे हो, आप कह रहे हो आप यहां, हम आपको बताएंगे आप क्या हो. हाउ कैन दिस वर्क? इज दिस अ डेमोक्रेसी? आप बताइए ना उसको आप क्यों बुला रहे हो. अच्छा, एज चीफ मिनिस्टर उसकी कोई फाइल पे साइन नहीं है. ही गॉट नो पोर्टफोलियोज. दीज आर एडमिटेड फैक्ट्स. फाइल पे साइन किसकी है? एलजी की. अगर केजरीवाल गलत है तो एलजी गलत क्यों नहीं है, जब इसकी कोई साइन नहीं है? ऑन वन एंड देयर इज नो साइन, यू आर स्टिल समनिंग हिम and you're not telling him whether he's an accused or he's a witness or he's an approver. On the other hand, बहुत जरूरी है ये चीज आपके व्यूअर्स को जानना. 10 तारीख को, 10 नवंबर को एक व्यक्ति अरेस्ट होता है. वो व्यक्ति अरेस्ट होने के बाद एज लिकर गेट के अंदर, यू आर टॉकिंग अबाउट विजय नायर? नो, सतीश रेड्डी. सतीश रेड्डी. वो अरेस्ट होता है. अरेस्ट होने के बाद 10 नवंबर को ईडी कहती है कि ही इज द अक्यूज्ड इन द लिकर गेट स्कैम. ओके. 15 नवंबर को वो बीजेपी को 5 करोड़ रुपया देता है बाय इलेक्ट्रल बॉन्ड्स. 10 तारीख को अरेस्ट होता, 15 तारीख को 5 करोड़ रुपया. ओके. ईडी turns him from an accused to an approver, does not oppose it, and he says हाँ मैंने किया ये क्राइम, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल है, मैं अप्रूवर हूं, नो मनी ट्रेल. उसके बाद वो बीजेपी को 35 करोड़ रुपया और देता है. इफ देर इज नो मनी ट्रेल टू अरविंद केजरीवाल एंड ही इज इन जेल, here BJP has got money and the accused has become the approver, and on his word of mouth you are arresting a chief minister, and in court you say we still don't have a money trail. भाई अगर 100 करोड़ मिले तो कैसे मिले? कैश से मिले? नोटबंदी का क्या हुआ? कैसे मिले? क्या क्रेडिट कार्ड से आए, डेबिट कार्ड से आए, बैंक अकाउंट से? रिकॉर्ड गया. आफ्टर 1 year and few months of Manish Sisodia in jail, you can't establish a money trail. After Sanjay Singh in jail, and all you are putting is more people in jail. It's terrible what's happening. I am not saying Liquorgate should not be investigated. मैं एक चीज और कहना चाहता हूं. I'm sorry, I'm going to take it for your viewers to know. Why did ED come into being? In the late 1990s, 1998 या 99, ये चेक कर लेना डेट, यूनाइटेड नेशंस में एक बात हुई कि we must have an organization, pan the globe, pan world, which coordinates with all worlds to deal with terrorism and terrorism funding. 2001 में वाजपेयी जी ने फिर ये कानून लाया ईडी का. बिकॉज ऑफ दैट यूनाइटेड नेशंस, व्हाट हैपेंड, Essentially, multiple governments wanted to has across the world, they said we must have one agency. This was 2001. 2001 में फिर 9/11 भी हुआ था. So India then got in the ED laws. Subsequently then the UPA government came, which was the Congress government. उन्होंने उस laws को notify किया क्योंकि president ने sign किया था. So they notified the laws. So ED came into being. What was the objective of ED? To look at terrorism funding, and the broader objectives of Hawala, etc. Today, ED is being used to put political opponents in jail. ED के अंदर आज schedule offense में copyright है, copyright. And the burden of proofs have been changed that you're guilty until you prove yourself innocent. अच्छा, ये जो सारे changes हुए, क्योंकि 2004 से 2010 तक कांग्रेस की, 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी. 2014 के बाद ये जो सारे changes हुए ED के अंदर, ये changes हुए सिर्फ लोकसभा में एज अ फाइनेंस बिल. सो व्हाट द गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी सब ड्रकोनियन चीज करने के लिए, सो दे पास्ड दिस एज अ फाइनेंस बिल. अब तक वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है. दे पास्ड इट एज अ फाइनेंस बिल. राज्यसभा डिड नॉट स्क्रूटिनाइज इट. तो आपने पूरा रिवर्स कर दिया, उसमें कॉपीराइट आपने डाल दिया. अब आप किसी को भी उठा लो, कल ये पॉडकास्ट उनको पसंद नहीं, आई विल पुट यू इन जेल. ईडी में यू हैव टू कॉपीराइट. As of now, I don't have those many subscribers, but maybe hopefully someday. Yeah. They can do anything. How are you going to deal? The point is not that because you don't have. The point is there's a law that allows them to use it. That is what we have. True. That is the problem. Of course, that was on a lighter note. But yeah. If Arvind Kejriwal is a crook, by all means, prove him guilty and put him in jail. You can't put somebody in jail and go on a fishing expedition. That's not how democracies work. Okay. So now, established, matlab your logic would be कि government is trying to do it to sort of influence the outcome of the election. Or तो this is the timing. Otherwise, why would they do it? And to finish off opposition. आप जानते हो छगन भुजबल, जिसके खिलाफ बीजेपी ने इतना अटैक किया कि महाराष्ट्र का सबसे करप्ट नेता है. जब अजीत पवार के साथ you switch sides and then you get अजीत पवार के साथ वहां चले गए, उसकी फाइल घूम गई. ईडी ने कहा कोर्ट में फाइल घूम गई, गुम गई, like lost it, and केस बंद कर दिया.
Do the They don't have whole to. exercise again, as simple. ये वो ईडी है. आप जानते हो हिमंता बिस्वा शर्मा, जिसके खिलाफ Everybody knows him. Yeah. के खिलाफ बीजेपी ने व्हाइट पेपर निकाला. जब वो बीजेपी में आया, मुख्यमंत्री बने, उसको अक्यूज से अप्रूवर बना दिया, जैसे इसको बनाया. Yeah, but isn't that the case with all governments? In fact, everywhere, not even in this country. The point is, Sad reality. It's certainly not something that I approve of, but then this is how it is. but in all other governments, you're innocent until proven guilty ना. आप ऑपोजिशन को ऐसे जेल में डाल रहे हो ना. ये क्या हो रहा है? जिस तरह से जेल में डाल रहे हैं विपक्ष को. So how would you see this influencing the election? मतलब will it like? अरविंद केजरीवाल is not going to campaign. मनीष सिसोदिया is not going to campaign. कांग्रेस का फंड्स बंद कर दिए. But आपको नहीं लगता कि उनका जो वोटर बेस है और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाएगा? Now if they see their leaders being bloody put into jail, shouldn't they be like, you know? फंड्स का है. हाँ, फंड्स का है. कांग्रेस का तो अकाउंट बंद है. वो भी बीजेपी के पास कितना पैसा है? Is it a level playing field? Is it a level playing field? 5-star होटल बनाया उनकी ऑफिस. It's like a 5-star hotel. I've been to that office once, so I know. Yeah. How is it? Genuinely. आप तो कोई कांग्रेस के सपोर्टर नहीं हो शमशेर. You've gone to I that try to be office? balanced guy. It's a 5-star hotel. It is without doubt, man. कहाँ से Lavish, पैसे आए? Lavish. ऐसे 40-40 करोड़ रुपया लेकर लोगों को अक्यूज से अप्रूवल बनाते हो. आपको मैं ईडी का दूसरा एक केस बताता हूँ. ये पॉलिटिकल केस नहीं है. एक बिजनेसमैन था, उसको समन्स आया. एक तो ईडी में बेल मिलता नहीं. उस बेचारे ने कैसे तो भी दिल्ली हाई कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल लाया. ईडी ने उसको बुलाया फ्राइडे को. वो तो खैर उनके पास टेक्निक्स हैं. वो कोई दूसरी एफआईआर कर देंगे, उसमें अरेस्ट कर लेंगे. समथिंग लाइक दैट दे विल कीप डूइंग इट. जब एंटिसिपेटरी बेल था फ्राइडे रात को. पुलिस भी करती है बहुत बार, मैंने देखा ये जुगाड़. पर पुलिस में आई अंडरस्टैंड, मतलब इसको 6 महीना जेल. इसको 6 महीना चाहिए दोबारा जाने के लिए, क्योंकि आपको योर गिल्टी टिल यू प्रूव. पुलिस ने किया तो आपको बेल मिल जाता है बिकॉज़ यू आर इनोसेंट. एग्जैक्टली. हाँ. अच्छा, पुलिस के सामने आपने कन्फेस किया तो कन्फेशन माना नहीं. कन्फेशन नहीं माना जाता. ईडी के सामने माना जाता है. ओके. ये कहते ईडी पुलिस नहीं है. ईडी पुलिस ने तो आपको अरेस्ट कैसे कर रही? How can an agency that's not a police have the power to arrest you? Under what law? Nobody knows it. It's terrible. Fair enough. So now, how do you see the election? But end of the day, by and large, the notion is that it is a foregone conclusion. क्या ही करना है? But now that, in your opinion, BJP is still putting so much of effort, are they like what? They are not confident. They are not confident of crossing. No. इसीलिए तो कर रहे हैं. वरना अगर इतना कॉन्फिडेंट था, काय नीतीश जी को ले रहे थे जिनका डीएनए टेस्ट कर रहे थे. प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी एक दूसरे का डीएनए टेस्ट कर रहे थे. करे क्या थे? नीतीश जी का मतलब आई लाइक क्या जोकर है. तो अमित शाह जी ने कहा ना कि दरवाजे बंद हो गए परमानेंटली. कहा था ना, पब्लिकली बोला था. फिर काय उनको लिया. फिर काय अजीत पवार को लिया जिसको चक्की पिसाने वाले थे. फिर काय दूसरे पार्टी को, काय एनसीपी को तोड़ा, काय शिवसेना को तोड़ा. यार ये पार्टी तोड़ना जो है ना, मतलब दिस इज समथिंग एज ए लाइक वोटर. आई एम टॉकिंग मोर एज अ वोटर, नॉट रियली एज अ पॉडकास्टर. मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग, उसकी मोरालिटी के एंगल से देखो तो इट सर्टेनली डजंट फील राइट. बट देन उसके प्रिसीजन के एंगल से देखो, देन यू स्टार्ट एडमायरिंग देम. यार कुछ तो कैपेबिलिटी तो है, बट पार्टी तोड़ देते हैं. But you see the opposition doesn't have the same funds and ED, na? It's not a level playing field. See, you admire them. I agree. Yeah. I think it's fabulous. But on the back of what are they doing? On the back of ED, na? On the back of funds, which the opposition doesn't have, and on the back of media, which demonizes opposition. I am saying, लड़ाई कीजिए. आप इतने ही अच्छे हैं तो फिर इक्वल लड़ाई कीजिए, फिर आप जीतिए. आपने क्या किया है? आप क्यों मेरे एमएमए मैच में मेरे दोनों हाथ बांध दिए, मेरा एक पैर बांध दिया, एक आंख बंद कर दिया, फिर आप मार रहे हो, कह रहे हो मेरा प्रिसिशन देखो. अरे आपका प्रिसिशन होगा ना, मेरे दोनों हाथ और एक पैर बांधा हुआ है. अभी नो मतलब, बट द वर्ल्ड इज अनफेयर बाय एंड लार्ज, इजंट इट? या बट डेमोक्रेसी सपोज्ड टू मेक इलेक्शंस शुडंट बी. नो, डेमोक्रेसी कैन आल्सो बी अनफेयर, बट इलेक्शंस, व्हाट मेड इंडिया अ डेमोक्रेसी, व्हाट मेड इंडिया द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? इलेक्शंस वर फ्री एंड फेयर. बाकी कुछ भी हो जाए, इन बिटवीन इलेक्शंस हम क्या कहते थे? यार सिर्फ 5 साल में एक बार वोट नहीं करना है, 5 साल आपको. ये हमारी कंप्लेंट थी ना. इट वॉज एक्सेप्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस वर फ्री एंड फेयर. टुडे व्हाट इज हैपनिंग? टुडे वन पार्टी हैज ऑल द मनी. इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 50.4% पैसा मिला है उनको. एग्री. They have all the media power. They have the agencies that are recently being misused. What? How do you fight? How do you fight an evil like this? So all my friends would consider me a little right leaning. Okay. I am also right leaning. Okay. So you are also right leaning. Economically. Economically. But ये लोग जो है ना, ये left है. Economically, ये भाजपा. Economically they are left. I'm exactly. बड़े complicated वो है. मतलब the right doesn't really. ये right है ही ना, left है. Exactly. The left is essentially they are confused. ये left है और ये conservative है. They are conservative, which is. ये आपके bedroom में आना चाहते हैं. कौन किसके साथ relationship? So honestly speaking, despite being my I vote for BJP, honestly. That's fine. That is for lack of a better option. I'll be very honest. So I am open to the idea for voting somebody else,
But and I have my issues with BJP. I have issues with how they handle Manipur. I have issues with uniform civil code. Not with uniform civil code as what such. they've done with Uttarakhand. But that Uttarakhand thing, ना essentially वो live in relationship registration वगैरह क्या नौटंकी है यार, मतलब stupidity की हद है वो. So and of course there are other issues जिस तरीके से वो चीजें handle कर रहे हैं. But then option क्या है? And now I have heard your word Sita, but then practically अभी वो option नहीं दिखता है. I agree. यहाँ opposition. So that is a sad ये state of affairs. opposition को मैंने बहुत एडवाइस किया इस चीज़ में. But आपकी एडवाइस सुनते नहीं ना. उन्होंने सुना कुछ हद तक, उसके बाद जो उनके वहाँ जो विद्वान है वो अपना कर रहे थे. मैंने ये बताया उनको कि अगर हम शैडो कैबिनेट करते हैं, हम अपना एजेंडा. आपने बताया था that was a good idea, very good idea in fact. But मैंने इतने अच्छे, देखिए मैं आपको एक डेटा देता हूँ, सॉरी मैं अपना फ़ोन डेटा देता हूँ. अब भी मैंने डेटा, मैं अभी ये कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को डेटा भेज रहा था. बीजेपी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी इन ओनली 6 out of 29 states. On the other hand, BJP has 0 states in Sikkim, 0 states in Mizoram, 0 seats in Tamil Nadu, 0 seats in Kerala out of the assembly. BJP gets, मैं assembly election की बात कर रहा हूँ, 4 out of 175 in Andhra Pradesh, 3 out of 117 in Punjab, 74 out of 294 in Bengal, 5 out of 119 in Telangana, 8 out of 17 in Delhi, 10 out of 147 in Odisha, 12 out of 60 in Nagaland, 74 out of 243 in Bihar. In states where BJP has a coalition government, BJP has 2 seats out of 16 in Meghalaya. In Jammu and Kashmir, when it was a state, they had 25 out of 87, 13 out of 40 in Goa. Out of a countrywide total of 4,139 assembly seats, BJP has just 1,516 seats, out of which 950 seats are from 6 states: Gujarat, Maharashtra, Karnataka, UP, MP, Rajasthan. That means there is no BJP states. Even today, BJP has only 36% seats in the state. कौन सा वेव है इनका? सवाल है इनके 36 को क्या हम हरा सकते हैं? At the peak, BJP अपने peak पे 36% है. We can easily defeat it. But 36% seats is a huge number for a single party to have. Who is denying it? But it's still less than what Congress had at its peak. Understand? I mean, I agree. But then that was a different era. Of course. तो वो भी एक दौर था. I'm not really very young, but वो मेरे हिसाब से भी it was an era. I agree. But ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है. तो जब कांग्रेस के पास 40-42% था, ऑपोजिशन ने हिम्मत नहीं हारी ना. नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ. टर्न अराउंड किया ना गेम. तो मैं कह रहा हूं जब कांग्रेस को वहां से हटा सकते थे तो बीजेपी को हटाना नामुमकिन नहीं है. डेफिनेटली नामुमकिन नहीं है. और आज भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं. 36% पे आज भी 36% के सामने आपके पास 64% है अगर आप यूनाइट हो गए. 64% में से मान लो 10% वहां चला गया क्योंकि कुछ, तब भी आपके अगर मेजॉरिटी भी नहीं हो, कट टू कट हो सकता है. बट आपको लड़ाई अपने शर्तों पे लड़नी है, बीजेपी के शर्तों पे नहीं, उनके मुद्दों पर नहीं, अपने मुद्दों पर लड़नी है. I understand. And mudde, in your opinion, would most likely be employment? Economy, employment, jobs, future of youngsters, Web 3.0, AI technology, हार्ट अटैक का पैंडेमिक जो इस देश में चल रहा है. Though I agree with all that you said, honestly speaking, whatever little understanding I have of politics, sadly इस कंट्री में इन मुद्दों पे वोट नहीं पड़ेगा. बिल्कुल पड़ेगा अगर आपने ठीक से आर्टिकुलेट किया. अगर आपका पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे हैं उनके परिवार में कोई ना कोई कोविड के बाद या उनके दोस्तों में से किसी को हार्ट अटैक हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, मतलब द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ दोज वैक्सीनेशंस दैट हैपन होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. बिल्कुल. क्या फार्मा का पैसा बीजेपी को गया या नहीं गया? नहीं, आई आल्सो रियलाइज गया या नहीं गया होगा. आई एम श्योर, मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में गया ही है. हाँ. इज इट अ रॉन्ग टू आस्क फॉर एन इन्वेस्टिगेशन? नो, मतलब और मोर ऑफ अ साइंटिफिक स्टडी में भी. क्या दवाई बन रही है या नहीं बन रही है? बिल्कुल बन रही है. जो लोग बना रहे क्या उन्होंने पैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में दिए या नहीं दिए जो पकड़े गए? शुड वी नॉट इन्वेस्टिगेटेड? क्या नॉर्थ इंडिया में एक कैंसर का पेंडेमिक चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है. मतलब आई पर्सनली नो ऑफ अ ट्रेन कॉल्ड कैंसर ट्रेन. यू नो वो गंगानगर में जाती है वहां पे, बिकॉज इतना कैंसर पेशेंट्स हो गए हैं, बिकॉज द ट्रेन इज ब्लडी बुक्ड बाय ऑल कैंसर पेशेंट्स. Should we work on it or not work on it? Absolutely. Is this a Hindu, Muslim, BJP, Congress issue? No, and it should not be. इस पे वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को समझा सकते हो? यार यहाँ पे सारा मुझे अगर आप लोगों को समझा सकते, नहीं मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए आज से नहीं. आपके जो सब्सक्राइबर्स है क्या इससे अग्री करेंगे या नहीं करेंगे? करने तो चाहिए, मतलब दैट इज व्हाट आई वुड वांट. Now why will they agree? Because I am talking logic and you're agreeing. Yeah. I am saying why do we think the voters are dumb? They are not.
Why can't we talk the way you and I are talking to voters and say there is a problem and we are here to help you? क्या कोविड के समय ऑक्सीजन पे जीएसटी सरकार ने लगाया नहीं लगाया? मैंने भरा है चेक से जीएसटी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, मैंने देखा था उस टाइम पे। हाँ, उन्होंने जीएसटी लगाया ऑक्सीजन पे। क्या किसी और देश में लगाया ऑक्सीजन पे टैक्स? नहीं, मतलब होना ही नहीं चाहिए था। जस्ट लाइक सरकार का काम है ऑक्सीजन लग रहा है, उन्होंने टैक्स लगाया। क्या ये मुद्दा है या नहीं है? क्या लोगों को नौकरी मुद्दा है या नहीं है? मुद्दा है और होना चाहिए। मतलब क्यों हम नहीं उठा सकते? क्यों यंगस्टर्स को हम नहीं कह सकते कि आपका जो भविष्य खराब हो रहा है, आप इस बात के बारे में सोचिए। क्या जय शाह जी सड़क पे आते हैं? क्या वैभव गहलोत जी सड़क पे आते हैं? सारे बैठे बीसीसीआई के अंदर। मैं वैभव गहलोत का ही नाम लेता हूं क्योंकि आप राजस्थान से हो। सारे बीसीसीआई में बैठे हुए, वो ओएसी का के बच्चे जाते हैं विदेश में पढ़ाई करने को। अगर धर्म खतरे में है, कल्चर खतरे में है, ये लोग क्यों नहीं आते? कुछ भी खतरे में नहीं है। मतलब माय अंडरस्टैंडिंग इज कि आप टीवी बंद कर दो तो सब ठीक है। शिवराज सिंह चौहान के बच्चे क्यों फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाई करते? सभी के पढ़ रहे हैं। मतलब हेमंता बसवा शर्मा के बच्चे क्यों जाके अंग्रेजी में पढ़ाई करते? क्यों यहां पर गरीब बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता एज अ मैटर ऑफ राइट? When English will open up the world. मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी मत पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा आपकी राज्य की भाषा मत पढ़िए, मैं आपसे कह रहा हूँ अंग्रेजी कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं होनी? बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज़ Web 3.0 will be based on English as a passport to a better life without a doubt. मतलब अभी anybody denying that? मैं जब मैं टीवी पे कहता हूँ, कहते हैं आप अंग्रेजी मानसिकता से हो, मैं कह रहा हूँ कि जब मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी हो सकती, गरीब की क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल। मतलब इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? इट इज इट्स नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब इट्स अ वर्ल्ड इट्स जस्ट अनदर लैंग्वेज। नो, इट इज नॉट जस्ट अनदर लैंग्वेज। करेक्ट, इट्स अ ब्रिज टू बिल्ड अ वर्ल्ड। तो व्हाई शुड वी नॉट फाइट ऑन दिस? वी शुड फाइट ऑन दीज इश्यूज। आपको क्यों लगता है पब्लिक आपको रिजेक्ट करेगी? पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। ये वो पब्लिक है जिसने इंदिरा गांधी को हरा दिया। मोदी जी से ज्यादा पावरफुल इंदिरा गांधी को बहुत लोग आज भी मानते हैं। बिफोर माय बर्थ टाइम, बट ऑफ कोर्स but many people still find her. Some people find Modi. If you can defeat people like that, why can't you defeat the BJP? Talk to people about their issues. And then let people reject you on these issues. That's fine. Exactly. At least put up a fight. But at least fight. आप अगर लड़ोगे मंदिर पे, जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, Exactly. आप अगर प्रधानमंत्री पे लड़ोगे, उनके पर्सनल कमेंट्स करोगे, तो आप उस पे हारोगे। आप वैसे हार रहे हो। लेट्स बाय योर एनालिसिस, आप हार रहे हो। ठीक है, आप मानते हो बीजेपी 36% में रेट है, तो अब विपक्ष हार रहे हैं, वैसे हार रहे हो ना? कम से कम अपने मुद्दे पे तो हारो। मतलब ठीक है, क्या जब देश का इतिहास लिखा जाएगा कि यार एक पार्टी ने सही मुद्दा उठाया, उसके बावजूद हार गए। हाँ, एग्जैक्टली, दे स्टूड फॉर देयर प्रिंसिपल्स। आज क्या लिखा जा रहा है? आप ये मुद्दा निकाल रहे हो, आप मंदिर का मुद्दा, आप बीजेपी के पिच पे खेल रहे हो। कम से कम जब इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास में अगर आप हार गए, कम से कम उस इतिहास में लिखा जाएगा यार मुद्दे तो सही उठाए थे, बंदा हार गया। वो तो मुद्दे उठाओ, हारो तो हारो, ठीक है, इस मुद्दे पर हारो, उस पे क्यों हार रहे हो? उनके मुद्दे पे क्यों हार रहे हो? एंड दैट इज समथिंग जो मेरे जैसे फेंस हिटर को, आई विल स्टिल नॉट कंसीडर माय सेल्फ फेंस हिटर, बट आई एम ओपन टू द आइडिया ऑफ स्विचिंग माय साइड्स। ओके, सो which will make me consider। मतलब मुझे लगता है कि हार है। मतलब जनरली डेमोक्रेसी में माना जाता है कि if somebody is losing तो जनरली उसको वोट नहीं मिलते हैं, और जीतने वाली साइड पे लोग वोट देते हैं। बट पीपल लाइक मी वुड वोट। मुझे पता है कि ऑन प्रिंसिपल आई एग्री विद हिम, ठीक है, आई नो ही इज लूज बट आई स्टिल वोट फॉर हिम। दैट इज प्रिसाइसली व्हाट डेमोक्रेसी इज। मतलब कि आई एग्री विद हिम, सो बिकॉज एंड ऑफ द डे जीतने के बाद चाहे कोई भी जीते, ही इज माई रिप्रेजेंटेटिव। बट जीतने से पहले आई हैव अ राइट टू डिसाइड। हाउ मेनी ऑफ योर व्यूअर्स नो हु देयर लोकल एमएलए और एमपीज? उसके बाद हाउ मेनी ऑफ द लोकल एमएलएज और एमपीज टॉकिंग अबाउट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टेक बिकॉज दिस इज अ पॉडकास्ट, वेब 3.0 इन एआई। कौन बात कर रहा है? हमारे फ्यूचर रेगुलेशंस क्या है? फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज हम कहाँ से बना रहे हैं एआई के अंदर? हु इज टॉकिंग अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग? Nobody is, and that is the sad reality. But then बीजेपी को लग रहा है if they can sort of, मेरे गेस्ट ने कहा था ऐसे ना कि pride is opium, एंड आई रियलाइज कि उनको लग रहा है कि अगर वो प्राइड के नशे पे देश को चढ़ा के अगर आप वोट ले सकते हो तो आपको ये सब करने की जरूरत कहाँ आ रही है? भाई प्राइड इस चीज में है कि वी आर द मोस्ट मैल नरिश्ड रीजन इन द वर्ल्ड। हमारे बच्चे मैल नरिश्ड है, हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, हमारे बच्चों को सीवियर प्रॉब्लम है, वी हैव लॉट ऑफ एनीमिया प्रॉब्लम, उसके अलावा हमारे पास डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उसके अलावा हमारे पास हार्ट अटैक का प्रॉब्लम। इज दिस आवर प्राइड? इज इट आवर प्राइड कि जो डिफरेंस है रिच और पुअर में इतना बढ़ चुका है? ये हमारा प्राइड है? प्राइड शुड बी कि आप वहाँ से भी, आप whoever you are born to, आपका बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर सेम होगा, चाहे आप भारत के सबसे पैसे वाले आदमी के बेटे हो या सबसे गरीब आदमी की बेटी हो, आपको बेसिक सेम मिलेगा। उसके बाद आपका टैलेंट, आपका मेरिट
और अगर आपके पास पैसा है यू गो टू द बेस्ट हॉस्पिटल, बट बेसिक्स का सबको नहीं मिलना चाहिए सीन। बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या भारत के सबसे पैसे वाले आदमी के बेटे को वही बच्चे को वही न्यूट्रिशन नहीं मिलना चाहिए जो गरीब के बच्चे को? उसके बाद वो चाहे बेस्ट प्रोटीन खाए, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट द बेसिक शुड नॉट बी द सेम कि डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट सेम हो। should be, and by definition we are a welfare state. वी हैव टू बी अ वेलफेयर स्टेट। So essentially इसीलिए तो हम आजाद हुए स्टेट की। क्या ये चीज नहीं होना चाहिए कि किसी को भी भारत में अगर बीमारी हो बेसिक ट्रीटमेंट सबके लिए सेम हो? बेसिक, हाँ, मतलब उसके बाद वो बेशक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, लेकिन क्या हमारे सरकारी अस्पताल में वो कैपेसिटी नहीं है कि इट इज एज गुड एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल इवन इफ द गवर्नमेंट सब्सिडाइजेज इट? हमारे टॉप डॉक्टर्स आज दुबई जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, बहरीन इज हायरिंग, साउदीज हायरिंग ऑल आर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को छोड़ो, लोग जा रहे हैं। लोग तो जा ही रहे हैं, मैं डॉक्टर्स की आज बात लोग कर जा रहा रहे हूँ। हैं। सऊदी में 3-4 हॉस्पिटल खुल गए, सारे डॉक्टर्स जा रहे हैं। व्हाई कांट Indian government pay them good salary, these same talented people, youngsters, and put them in government hospitals in a village in Rajasthan, in a village in Maharashtra, so you get the same good quality. Why are they going? They're going for money? Of course. Let's nothing wrong. That is the अब पहले इसमें कोई गलत reason. चीज नहीं, everyone wants to make their Of life course, better. अगर उनको वहां पर 5 लाख की सैलरी मिल रही है सऊदी में, क्या भारत की सरकार 1.5 लाख की सैलरी नहीं दे सकती? वो आदमी उसके प्रदेश में रहेगा। मान लो एक राजस्थान का डॉक्टर जा रहा है सऊदी, सब कुछ छोड़ के उसके घर को छोड़ के 5 लाख, अगर राजस्थान में उसको 1.5 लाख मिला, क्या वो नहीं रहना चाहेगा राजस्थान में? बिल्कुल, मतलब उसके परिवार फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, आई विल लाइक कि घर जाना है, वहां जाके देखेंगे क्या जो करना है। दिल्ली से जयपुर जो 3-4 घंटे का रास्ता आपने मूव बैक किया, वो सऊदी क्यों जाएगा? आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 10 years in Delhi, I will like कि वापस जाएंगे। My office was like right next to this place. You agree with me? Yeah. Can't we do that? We should. And Can't we give our teachers 1 lakh salary? क्योंकि टीचर्स भविष्य are grossly underpaid. उसमें तो you have to अब agree. आप टीचर्स को बोलते जाके इलेक्शन ड्यूटी में रखो। क्या हम आज all kind of polio duty, election duty. Is this the duty of teachers? But then you need somebody to do that. अभी essentially Now, इसके लिए you can't have a department now अलग come से back to it. polio You पिलाने need के लिए। somebody to do it. What is the use of AI and blockchain? And use it for that? कर सकते हैं? हाँ, मतलब in recent times yes. क्या टेक्नोलॉजी डेवलप? आप मुझे बताओ, इतने फेक मेडिसिन बन रहे हैं अभी जो मैंने बताया, क्या हम ये नहीं कर सकते, लॉ पास नहीं कर सकते कि सब मेडिसिन के ऊपर बार कोड होगा, वो बार कोड होगा, आप मोबाइल से स्कैन करोगे थ्रू एआई, ऑल मेडिसिन, ऑल कंपनीज दैट आर मैन्युफैक्चरिंग हैव टू बी रजिस्टर्ड ऑन द ब्लॉकचेन। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कब मैन्युफैक्चर हुआ, कितने घंटे में से, स्पेसिफिकली किसने उसको हैंडल किया, शमशेर ने हैंडल किया, शमशेर ने पैक किया, शमशेर ने उसके बाद फिर उसको समझो महाराष्ट्र में किसने पैक किया, कहाँ गया, कौन महाराष्ट्र से distributor, फिर कौन उसको wholesaler? राजस्थान भेजा, इस ट्रक के अंदर आया, इस ट्रक का ड्राइवर ये था, ये ड्राइवर का कार लाइसेंस नंबर है, इस ट्रक से फिर इस मेडिकल स्टोर में उतरा, इस मेडिकल स्टोर से इस आदमी का तहसील के मेडिकल स्टोर में आया, और इससे फिर वो बिका विजय को। क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता Absolutely. ब्लॉकचेन? Now with the technology advancement, everything is possible. This technology existing for the last 3-4 years? Yeah, blockchain. Have we made use of it? What are we trying to do? Blockchain. Blockchain बैन हो सकता है? नहीं, एनी फोर्थकमिंग टेक्नोलॉजी को ब्लॉक करने का आइडिया अपने आप में स्टूपिड है, बिकॉज़ Are they- टेक्नोलॉजी and विल what are फाइंड they इट्स trying? वे टू सॉर्ट ऑफ परपेचुएट। अब आप या तो उसको सही से रेगुलेट वो टिकटॉक को बैन नहीं कर पा रहे इंडिया में, वो कौन सा उनका गेम है, पबजी को बैन नहीं कर पा रहे, वीपीएन के थ्रू खेल रहे हैं, इसको ये बैन होगा ब्लॉकचेन? तो पूरी टेक्नोलॉजी है, यू कांट, मतलब एंड द वेरी Instead of trying these stupid attempts, can't you have made this in the last 3-4 years, this network, so people's lives would have got saved? the idea should be to sort of regulate it properly and then sort of Have a enable regulatory body. You can have a regulatory body that looks at technology and coordinates with, in this example, the Ministry of Health Affairs. तो पता चला कि महाराष्ट्र के अंदर जो ये मेडिसिन बनी है, Exactly ये किसके से पास हुई है? राजस्थान के इस गांव के अंदर शमशेर को बिकी है, और तहसीन की दुकान से बिकी है, विजय ड्राइवर था, ये था। हो सकता है या नहीं हो सकता है? Why are you not doing it? Why do we not want to invest? क्योंकि हमें प्राइड है, हमें प्राइड है Nationalism फेक like- चीज के ऊपर। एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है And essentially। nationalism is good. It But is, is but- nationalism not about saving people's lives and making our country better? Particularly when we are developing the technology for outside world, who are the people working in Google, in Microsoft, in मोस्टली इंडियंस, या हम 60, दोस्त है मेरे, 65? मतलब आई एम एन इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन, सो You are, and so you understand what I'm saying. So with all this like input and with all these thoughts, why are you a political analyst and not a politician? वक्त अभी टाइम चेंज हो। चुनाव लड़ लो, अभी है चुनाव बाबा, now is the time. अभी मेरा गोल ज्यादा बड़ा है, अभी सबको एजुकेट करना है, चुनाव खत्म हो तो फिर Because we honestly need people like you. मतलब as a voter I am saying this, अभी we need people who have balanced opinions, who can say कि मोदी जी ने अच्छा किया तो किया, because अभी opposition की प्रॉब्लम वही है, opposition का एक ही है कि we are together to stop मोदी,
Now stopping Modi can be their goal as an opposition because like it's not my goal. My goal is to see my country progress. I don't agree, and country should be first. care. Exactly. कल मोदी जी को भूटान में हाईएस्ट अवार्ड मिला, सिविलियन अवार्ड, सॉरी हाईएस्ट गवर्नमेंट अवार्ड. आई ट्वीटेड, आई कांग्रेचुलेट हिम, ही इज माय प्राइम मिनिस्टर. Yeah. अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर कुछ अच्छा करता है, वो मेरी कंट्री के लिए करता है, बिल्कुल. तो ही इज माय प्राइम मिनिस्टर एज वेल. आई हैव टू रिस्पेक्ट इट. तो यू हैव टू एक्सेप्ट द गुड दैट ही डज. जैसे आई रियली गिव हिम क्रेडिट जो हमारे रिलेशंस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ है, फिनोमिनल. नो प्राइम मिनिस्टर्स डन दैट. जहां पे उनको क्रेडिट देना चाहिए, मैं पहले होगा उनको क्रेडिट. Article 370. When that happened, you were very supportive of it. अच्छा ही निकाल दिया. व्हाट आई वाज अगेंस्ट इज लोगों को लॉकअप में डाला. वो नहीं होना चाहिए. मुझे लगता था कि शुरू में they were probably anticipating some trouble. But हाँ मतलब बहुत लंबा खिंच गया. फिर जब फिर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, लोग ठीक थे. Ideally ठीक है, 10-20 दिन महीना हो गया. अब now you should just sort of get back with life. अगेन अपने लोगों का लैंडलाइन काट दिया. दिस इज आई एम अगेंस्ट. अच्छा आपने निकाल दिया. एंड यू शुड हैव फेथ ऑन योर ओन सिटीजंस दैट दे वोंट गो एनीवेयर. By and large, that is what happened. Nobody sort of created any trouble, and now people are sort of really happy. From whatever few connections that I have in Kashmir, like people are really happy. Now it is our duty that we ensure that the people of Kashmir are completely assimilated into the mainland India. Kashmir is also mainland India, but I'm saying it in the differentiation because we're talking particularly about Jammu and Kashmir. Because right now Ladakh के अंदर वो बैठे हुए. अच्छा. Phunsukh Wangdu is the character, मतलब essentially the real guy is. क्यों बैठे हुए? Sonam Wangchuk, yeah, Sonam Wangchuk. क्यों बैठे हुए वो? क्या चाहिए उनको? Because he wants to sort of protect the ecosystem, जो climatic ecosystem है. And how does he want to protect it? You'll have to educate He me. wants Schedule 6 of the Constitution. What is it? I don't know honestly. I'll tell you yours. No outsider can buy land. No outsider can get job. No outsider can stay. What was 370? Exactly these three things. So you celebrated removing it, and now they're saying we want the same thing. We don't want 370 on this. Can you imagine? So essentially, what he is in principle, from what I understand, He's saying hard को commercialization नहीं होना चाहिए. What was because it's a very fragile ecosystem. What was 370? नहीं, I understand. No outsider can buy land, which is in Himachal. No outsider can buy agricultural land. No outsider can stay permanently. Can get voting rights. But then independent flag and all is a little. वो सब नहीं करना. तो उसके सामने मोदी जी ने सलाम लिया. How दिया? They had like मुफ्ती साहब के साथ. They were in coalition with Mufti Saab. Yeah. I am against it. Why should you have it? But इसके साथ no separate constitution, no flag. I am for it. एक देश में एक ही संविधान, एक ही निशान. लेकिन नागालैंड का जो पीस अकॉर्ड हुआ था 2017 में, उसका जरा पेपर दिखाइए ना. 2 दिन में दिखाने वाले थे ना बीजेपी गवर्नमेंट. क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि नागा रिबेल्स बार बार कहते हैं हमारे कॉम्प्रोमाइज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट डिनाइज इट. पुट द एग्रीमेंट आउट. एग्रीमेंट साइन किया था, टीवी पे लाइव आया, ताली मारे. हुआ था, वो सब हुआ था, बट आई डोंट नो द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. So there was the agreement. It was covered live. बोले नागालैंड finally peace is happening. 2 days agreement will be given to people. आज 2017 की बात, आज हम 2024 में हैं. We are in a democracy. How can you sign an agreement that you made on my behalf? Mr. Modi ji is not the king. He's my prime minister, but he represents me. He represents we the people. He represents Shamsher and me. That agreement is not signed by Modi ji. It's signed by we the people. Shamsher and Tehseen. That is the like first word of the constitution. Yeah. We the people. He signed it on our behalf. Where is my agreement? You are not giving the agreement. You can't really go asking for any kind of document. I'm not asking There's something confidential. But he had said he'll give it in 2 days. They had said it. It will be made public. Tell me another agreement signed with somebody that's not being made public. And if the agreement was not to be made public, why did you have a public ceremony to sign it? Then. And now those rebels are saying, but in this agreement, we had agreed to a separate constitution and a separate flag and a separate parliament. Not just that, a separate parliament. They're saying it. I'm sure government would have denied it. They denied it. Either they are lying or you're lying. So the people you made an agreement are lying. So what was the agreement for? So either they are liars. Exactly. I agree with that. Either they are liars or either they are speaking the truth. बीच का तो नहीं हो सकता है. So either if they are liars, have they conned you? Then have they conned you? And if they conned you, put the agreement out, say they are conning us. Or if they are not, then say, boss, here is the agreement. Stop conning us. You might not be like अभी आपको हो सकता है issue हो उससे आप you might not be agreeing और आप but हुआ ये था. Exactly. How can you deny to citizens of India? Tell me an agreement that's ever been denied to anybody in a democratic country. Okay, you didn't show it immediately. Chalo, you didn't show it in 2017. 2024, so you can show it, no? How can an agreement made by a state be denied to the citizens? The state is not the BJP.
or the government. The state is we the people. How can we the people be denied our right for an agreement? Under what law? Probably they'll claim it is like confidential documents. Again, I don't know, मतलब honestly. Again, then why were you signing it in public and had the media there? Private में कर देते sign. बहुत सारे private agreements हुए. I'm not denying. Governments have to do certain stuff. There are a lot of stuff. You could have done it privately. You signed an agreement publicly saying we've solved Nagaland. And now you're saying we will not make the documents public of how we've solved it. So how you solved it? So अभी election पे, now that like we are in the election, very आई गया तो बचा ही क्या है आने को. So do you see any hope for opposition or now it's too late कि अब नहीं, like I said, अभी भी 36%. If they listen to me, they can still do very well. But they have to listen to me unconditionally. I'm telling them every day now, after this meeting, I'm going to talk. They have to listen to the issues I'm saying. Don't fight on all these issues. Of course, because I am a marketer by profession, like engineering MBA. So I realize कि positioning करके ना एक चीज़ होती है. And if one particular brand has taken that positioning ना, आप उसमें fight मत मारो, वो हो गया. So now ये जो religion और Hinduism और ये है ना, ये ले चुके हैं वो. अभी उसमें उनका है. उस पे आप मत जाओ. आप ये सवाल पूछो, भाई भूख हिंदू के भी बच्चे को लगती है, मुसलमान के बच्चे को भी लगती है. नौकरी हिंदू के भी बच्चे को चाहिए, मुसलमान के भी चाहिए, क्रिश्चियन को. आप इस पे बात करो, बोलो आप ठीक है. देखो मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ, वो बात करेंगे ताज की, हम बात करेंगे आज की. वो बात करेगी हिंदू मुसलमान की, हमें बात करना चाहिए इंसान की. वो बात करेगी पाकिस्तान की, हम बात करेंगे हिंदुस्तान की. वो बात करेगी गीता कुरान की, हम बात करेंगे संविधान की. खत्म. आप क्यों उनके मुद्दे पे बात कर रहे हो? आप काहे क्लैरिफाई कर रहे हो पाकिस्तान में क्या है नहीं? जान दो ना, आप बात करो हिंदुस्तान में क्या है क्या नहीं है. थोड़ा सा ना वो essentially, I don't know whether it is appropriate to say here, but then end of the day it is my podcast, so I can say whatever I want. Essentially एक line है कि never to wrestle with a pig because they drag you down to the mud first and then they'll beat you with experience. तो आपको ideally ना उस गेम में नहीं जाना है, मतलब उनके ईडी वाले अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी. हाँ, और मैंने पिग नहीं बोला है. ठीक. ईडी का वैसे ईडी मुझे बहुत देख रहा है क्योंकि मैं रोज शाम को इनको आज. और आपका सरनेम पुना वाला है तो उनको लगा पैसा तो होगा ही. एक तो सरनेम पुना वाला, सेकंड रोज शाम को मैं इनकी क्लास ले रहा हूँ ईडी वालों की. तो ये पूरा मुझे मॉनिटर कर रहे हैं ईडी वाले. ओके, करने दो. मॉनिटर तो बहुतों को करते हैं, बहुत लोग. बट ये ऑल्सो ये एक चीज़ है, ये नई फिनोमिनन नहीं है. सारी सरकारें करते हैं. एग्जैक्टली, मतलब पहले कांग्रेस ने किया है, मतलब कांग्रेस से पहले की सरकार है तो मुझे ये पता नहीं, मतलब उसने भी किया, इन्होंने भी 4 to 14 तो मुझे पता है, उससे पहले का तो मुझे मतलब ये लोग, बट ये लोग ने दूसरे हद तक लेके मतलब दे आर लिटिल सॉर्ट ऑफ अग्रेसिव इन योर फेस टाइप्स कि हाँ कर रहे हैं, क्या करोगे, कर रहे हैं क्यों थोड़ी सी नहीं हम नहीं कर रहे, ये लोग कर रहे हैं, जो करना है करो, ऐसे ही होगा, कर लो क्या करोगे टाइप्स. दिस इज गुड, बट दिस इज नॉट गुड एज सच, इज लाइक बट दिस इज लाइक दैट्स हाउ इट इज. अभी ऑनेस्टली ओपोजिशन के साथ जो बड़ी चैलेंज मुझे लगता है, आई एम स्टिल ओपन टू द आइडिया ऑफ वोटिंग फॉर कांग्रेस, ओके, बट आई कांट bring myself to be open to voting for the India alliance. This can I ask you something, because you're from Rajasthan, अगर सचिन पायलट को फेस बनाया जाए तो? मैं बता रहा हूँ ना, he would have this election, last election which the Congress lost, would have a different outcome. पर वो नहीं हो रहा है ना. And now even जो सचिन पायलट के लॉयलिस्ट हैं, they've lost hope. Honestly, मैं सचिन को एक बात बताया, I'm saying this on podcast. I told him that eventually जो he has a lot of supporters and lots of. I told him eventually सचिन का एक, और ये कांग्रेस को इसका एडवांटेज लेना चाहिए सचिन को लेकर. सचिन cuts across caste, absolutely, religion and youth come with him without doubt. Sachin is such a good orator, English, Hindi, such a calm person, और very grounded, और वो जिस लहजे से बात करते हैं. He has a team in every single village. Trust me. And I told him कि he cuts across. And those are not Congress guys. Those are Sachin Pilot guys. मतलब मेरे गांव में और juniors और स्कूल के बच्चे को, I come from like proper गांव में ना, खेत में मकान टाइप्स. तो अभी भी टीम है, और वो सचिन की टीम है, वो कांग्रेस की टीम नहीं है. मतलब सचिन इंडिपेंडेंट पार्टी बना लेगा, वो वहाँ चले जाएंगे, सचिन बीजेपी में आ जाएगा, वो वहाँ चले जाएंगे, सचिन कांग्रेस में, वो कांग्रेस में. तो वो कार्डर जो बनाया ना, कांग्रेस के कुछ अच्छे लोग चले, इट इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी. मतलब सचिन तो है, पर कुछ अच्छे लोग गए कांग्रेस के, ज्योतिरादित्य भाई. आई डोंट थिंक ही शुड हैव गॉन. आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. और देखिए सिविल एविएशन, दैट्स अनदर वेरी गुड वर्क. ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क, एंड आई रियली रिस्पेक्ट द वर्क ही डूइंग एट सिविल एविएशन. तो आप जब पूछते हो ना भाजपा के कौन से काम, एक 370 हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, ज्योतिरादित्य
civil aviation, fabulous job. गडकरी ji to everyone हाँ, talks. he's like, हाँ, I love हाँ. Gadkari. I really love Gadkari ji. But Jyotiraditya के बारे में इतना हाँ, लोग उतनी बात नहीं होती. He is not getting that much credit जितना उनको मिलना चाहिए. and he went from Congress. Such a talented guy. To lose a guy like him. मिलिंद देवड़ा. Himanta Biswa Sharma. Sorry, North East Coast ने capture कर दिया. Congress. Milind Deora. Today you see what Milind Deora is doing in Mumbai with Eknath Shinde ji. ठीक है, I don't like BJP. I don't like that group. But मिलिंद जैसा आपको लीडर नहीं मिलेगा. मिलिंद का जो और मिलिंद ना for the Congress, I tried explaining to the Congress people. Milind got a lot of soft power for the Congress. क्योंकि अभी क्या होता है, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ठीक है, मैं आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अप, मैं नाम नहीं कहूँगा. मैं एक 15 मिनट लेट हो गया, जब मैं यहाँ फिर वापस आ गया, एक एक्टर का मुझे कॉल आया, तो मैं अंदर गया, आई डिडंट वांट टू टॉक ऑन कैमरा, एंड ही सेड ब्रो आई रियली लव यू, आई रियली रिस्पेक्ट, वेरी टॉप एक्टर ऑफ इंडिया, टॉप एक्टर, अभी उसका कॉल आया, I really love you, I really respect you, I'm like a huge fan of yours. I can't tweet or Instagram because but you know I really want to tell you that I'm supporting you and I really admire you. ठीक है, अभी बात हुई वो कमरे में. मिलिंद क्या करता था, वो सॉफ्ट पावर को ले आ रहा था, ठीक है, वो लोग आ रहे थे, उससे माहौल बन जाता था. तो ये जो एक है कि जब आदमी देखता है यार ये लोग भी आ रहे, तो यू नो ही टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ सॉफ्ट पावर टू द कांग्रेस. मिलिंद का क्या है, मुकेश भाई से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, अंबानी से, उनसे, इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक कांग्रेस को एक्सेप्ट करते थे, एक बहुत माहौल बन जाता है. सो दीज आर थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट. सो ही गॉट सो मच वैल्यू टू द कांग्रेस एंड यू नो व्हाट आई फेल्ट वेरी बैड व्हेन मिलिंद लेफ्ट. ठीक है, नाउ ही इज इन राज्यसभा, उनको एकनाथ शिंदे जी ने वैल्यू किया and put him in राज्यसभा, but मिलिंद एक्चुअली राज्यसभा के लिए नहीं गया. और मैं ऑन कैमरा कर, मेरे को छुपाने की बात नहीं है. In fact, I'll tell you a small joke. Milind, I'm saying this on camera. But I have to say it. So one day I was at a dinner and somebody was talking to Karan Johar, a woman, and she looks at me and she says, "You are the one who talks to my husband in the late night." Okay. So I'm like, "Who's this woman with Karan Johar?" And saying, and then I realized it's Milind's wife. I'm like, "Hi, Pooja," and then Pooja, Karan and I were talking. She's saying, "Oh, you talk to my husband." So Milind shared with me a lot of things late night. Milind didn't want Rajya Sabha. Milind wanted to fight from South Mumbai. He told the Congress, "I will win this seat." वो कांग्रेस को मजबूत करने की बात exactly. और आपने उसको एनिमी बना दिया. अब वो भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब दिस इज अ, वो ये नहीं कह रहा कि वो खुद देखो, राहुल गांधी जी उनके दोस्त थे, वो ये नहीं कह रहा था कि राहुल गांधी जी मुझे राज्यसभा नहीं दे सकते, प्रैक्टिकल, वो भी प्रैक्टिकल आदमी है, वो कह रहा मैं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस के सिंबल पर लड़ना चाहता हूँ. आप उसको डिनाई कर रहे हो. नहीं, पर उसमें व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ही वाज द कांग्रेस लीडर, वो वहां पे शिवसेना का सिटिंग है, कोलिशन के हिसाब से शिवसेना, बट वो एमपी जीतेगा नहीं. बट दैट इज समथिंग, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना, दैट इज द जॉब ऑफ टॉप लीडरशिप. तो उसको कहीं और दे देते, वो आपको करो मैनेज. वो एमपी जीतेगा नहीं वहां से, वो कांग्रेस की सीट है. ओके, अभी क्या होगा, मिलिंद के जाने से वो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि देवरा फैमिली का काफी होल्ड है. सो एसेंशियली दैट इज प्रिसाइजली द जॉब ऑफ टॉप लीडरशिप. आई डोंट नो टॉप लीडरशिप, बट ये क्या हो गया महाराष्ट्र के अंदर कि जो महाराष्ट्र में, लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं मैं इस लोकल्स का, लाइक जैसे कुछ लोग हैं जो अननेसेसरी स्टेटमेंट से पार्टी जो अलायंस में उसे दिक्कत कर देते हैं, जैसे संजय राउत, जब भी वे अपना मुंह खोलते हैं अलायंस में दिक्कत होती है. और ये सब किसी को उन्होंने, देखो आई डोंट लाइक, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंगना, आई डोंट लाइक कंगना, आई डोंट केयर अबाउट कंगना, बट आई डोंट थिंक शी इज इंपॉर्टेंट इनफ टू अब्यूज हर. शी इज अ वुमन, उसको आपने गाली दे दी, उसका घर तोड़ा, ये गलत है. जो गलत है वो गलत है. मतलब एंड ऑफ द डे कांट डू ऑल दिस टू पीपल. इवन वैसे भी आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से भी देखो तो इट इज डिट्रीमेंटल टू योर ओन इंटरेस्ट. और यार ठीक है यार, उसने जो बोली, उसने बोली नहीं बोली, उसका घर तोड़ दिया, जैसे थोड़ी होता है यार, नहीं होता है. और आप उस और ये संजय राउत जैसा बड़ा नेता उसके उनके साथ, वो एक्टर है यार, ठीक है, उसकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बेचारी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, जो भी है यार, उसको अपना करना है, और उसको क्यों अधिकार नहीं अपना करने को. Exactly. Why she not? Exactly. हम अगर डेमोक्रेट, that is the basic fundamental of democracy. Again, I don't like Kangana. I don't care a damn about Kangana or her opinions. But does she not have a right to say what she has to say? Absolutely. Who are we to go break her house? No. ये होना चाहिए. Problem. बीजेपी फैसिस्ट है ना, ये करती है. तो हम क्या कर रहे हैं? बन जाते हो. मतलब क्या कर रहे हैं? When you do it, you become same. ये आपकी गवर्नमेंट पंजाब में, ये तेजेंद्र बग्गा को अरेस्ट करने को आई दिल्ली. हाँ. You don't like बग्गा, ठीक है, अरेस्ट करोगे. ये थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं होता. लाइफ में वी शुड नॉट बिकम व्हाट वी फाइट. वी आर फाइटिंग बीजेपी. बीजेपी से हमें ये सारी
वो हम नहीं बन सकते। You cannot be another version of it. क्या point है उसका? जब भगवान राम ने रावण को हराया, वो रावण की तरह नहीं बने, वो मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे। एक स्टोरी है राम और रावण और रावण की, it's an oral story, it may or may not be true, but the Ramayana has many retellings. True, yeah. So it's a story that I used to have a guy called in my childhood, who used to work with my father, called Bhagwan Seth. Used to work with my father, उसको भगवान सेठ बोलते थे। तो वो मुझे रामायण की स्टोरी सुनाता था, भगवान सेठ। used to do carpentering etc work। तो उसने मुझे बताया कि राम जी इतने महानते जो थे कि जब लड़ाई होती है तो रावण हार रहे, तो राम जी लड़ाई रोक देते, कहते कल आओ, कल लड़ेंगे। There's a retelling of that story also, बोले हाँ कल लड़ेंगे। He gives them a chance। वहाँ पे भी चांस देते। Now it may not be in the written script, it's an oral telling, maybe in his subtext उसके। कहते नहीं यार तो आज हार रहा है, कल लड़ेंगे। What is important is the lesson. It's not really whether it is factually correct or not. Ram doesn't become like Ravan. Ram remains Maryada Purushottam. He says, I'll fight you tomorrow. कोई बात नहीं, तू आज रेस्ट कर दे। What I'm saying is, whatever the story is, Ram is Maryada Purushottam. Ram doesn't become a Ravan to beat Ravan. Ram remains Ram to beat Ravan. We have to be like that. You have to stick to your values. You can't fall down to their values. I think Michelle Obama said this beautifully. When they go low, you should go high. Don't go low with it. हम अगर ये करेंगे तो गलत होगा। Because essentially हो क्या रहा है, everybody is looking at it from a success angle कि भाई जो कामयाब whatever gets you success, just do it. But you have to realize कि राम की जो महानता है वो उनकी कामयाबी में नहीं है, वो उनकी मर्यादा में है, उनकी चरित्र में है, समझ रहे हो ना? वो काम by all means राम was not a successful king as such. I mean like in the sense जिसमें हम सक्सेस को डिफाइन करते हैं, बट दैट इज प्रिसाइसली व्हाट मेक्स राम राम। एंड इफ तो वही करना चाहिए आइडिया आपको। He was successful after he comes back to Ayodhya. But tell me, that's an after story sort of thing. But Dashrath, when Dashrath tells Ram that you don't have to go, Ram could have said, Dad, you promised. But what does Ram say? Raghukul Reet sada chali aaye, pran jaye par vachan na jaye. He could have told his father, I'm going to be crowned tomorrow. And forget father. What would anyone have done? उसके बाद कैकेयी herself went to bring him back. Correct. जिसने खुद ने वर मांगा था। अब उससे ज्यादा कोई क्या बोलेगा? उसके बाद पूरा रीजन था, चलो वापस माई आ गई तो चलते हैं वापस। Correct. नहीं है ना वो। Deal is off. Because the father is gone. Correct. And now father can't take his words back. Correct. So I'll have to honor it, whatever with the cost. Exactly. That is the strength of character we need in today's politician. And yet he goes away. Imagine had he not gone. Imagine he said, okay, I become king tomorrow. What will you do? क्या हो Nothing, honestly nothing. क्या हो जाता? But Kaikei also agrees. it's just that we would not be talking about him today. Exactly. And that's what we need. We need to maintain our values. Doesn't matter what the other person thinks. राजस्थान की, like talking of Rajasthan politics, Sachin Pilot I personally admire, and मुझे पता है कि if Sachin Pilot becomes the face of the Congress in the government, कांग्रेस की फॉर्चून चेंज हो सकती है। बाकी with like Mr. Dotasra and even with Mr. Ashok Gehlot, I have a lot of respect for him, but now his time is like sort of हो गया उनका टाइम, and Vaibhav is sort of, he might be your friend, I don't know, but personally he will not win an election. मतलब I can say that for sure. अभी राजस्थान की 25 सीट्स हैं, मोस्ट लाइकली बीजेपी विल मोस्ट ऑफ देम। लास्ट इलेक्शन में भी वही था, उससे लास्ट इलेक्शन में भी वही था। मुझे लगता है अगर कोई सीट निकाल सकता है तो सचिन पायलट निकाल सकता है, अशोक गहलोत खुद निकाल सकते हैं, वैभव गहलोत नहीं निकाल सकते, मतलब ही विल नॉट विन। हाँ नहीं लड़ेंगे, बट प्रॉब्लम वही है कि वो लड़ेंगे नहीं। अभी नाउ इफ यू आर सो हेल बेंट ऑन स्टॉपिंग मोदी एंड यू शुड फाइट फॉर एवरी सिंगल सीट। इफ देयर आर 2 people who can win you seats, मेक देम रिजाइन एज एन एमएलए, कंटेस्ट दिस इलेक्शन। 4 साल बाद जब सरकार दोबारा लड़ लेना, यहाँ से रिजाइन करके आपको हर सीट के लिए लड़ना पड़ेगा। वो फाइट नहीं दिख रही है। ये इस चीज़ को मैं मानता हूँ। आप देखिए, अब वो भाजपा में कर्नाटका में बोमाई जी लड़ रहे, सबको लड़ा रहे, और शिवराज सिंह चौहान जी को लड़ा रहे, मध्य प्रदेश चंद्रशेखर एंड ऑल जो कि राज्यसभा के लोग उनको भी लड़ा रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर। हाँ, राजीव चंद्रशेखर। तो वो हर सीट के लिए लड़ रहे हैं। टूथ एंड नेल यू हैव टू फाइट फॉर एवरी सिंगल थिंग, मतलब एवरी इंच। वो ड्राइव नहीं दिखती ना कांग्रेस में। और देखिए ये बता, आई टेल यू, अभी राजस्थान में सरकार बनी इनकी बीजेपी की, एंड क्वाइट लिटरली आफ्टर 4th day दे हैड अ मीटिंग फॉर लोकसभा इलेक्शंस एंड दिस एंड दैट एंड एवरीबॉडी इज कमिंग, एंड 4 दिन नहीं हुए, क्वाइट लिटरली 4 दिन नहीं हुए, एंड वो ड्राइव वही करने से, एंड दैट इज व्हाट फील्स ना कि डूअर तो हैं ये लोग,
what they are doing is right or wrong is वो ठीक है, वो debatable है, but they are doer, they are action oriented. वो जो image है ना, वो somehow कांग्रेस की नहीं बन पाई. कांग्रेस में बेचारे सिर्फ राहुल गांधी जी बेचारे मेहनत कर रहे हैं. आई एम जेन्युइनली सेइंग. अभी आप उनसे अग्री करो या नहीं करो, वो और बेचारी प्रियंका जी मेहनत He's just roaming around, वो एफर्ट मार रहे हैं. एफर्ट मार रहे हैं. अब आप देखो CWC जो कांग्रेस की हाईएस्ट बॉडी है, 70% of the people are not fighting in elections on that. Essentially, that is precisely the problem. Politicians का काम है चुनाव लड़ना. If you can't fight and contest and win an election, you are not a politician. या राज्यसभा वालों को politicians में नहीं गिना जाता है, मतलब practically. और ये सबको राज्यसभा चाहिए. सबको और उसमें से कुछ ऐसे लोग जो अपने स्टेट से राज्यसभा नहीं जीत सकते, दूसरे स्टेट में जाते राज्यसभा. हाँ, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने जो पॉलिटिशियंस की जो ग्रुप है उसमें भी उनकी इक्वेशन सही नहीं है. ये चीज़ पे सोचना होगा कांग्रेस को. अगर कांग्रेस को जेन्युइनली चेंज करना है इस चीज़ पे, मैं इनको ये एडवाइस देता हूँ. बिकॉज बेचारे राहुल गांधी की मेहनत पे जो है ये लोग पानी फेरते हैं. वो मेहनत करें. अब मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप अग्री करो नहीं करो, इस बंदे ने 10,000 किलोमीटर देश में घुमा है यार. 10,000 किलोमीटर घुमना आसान नहीं था. 6,000 किलोमीटर बीइंग ऑन द रोड इज इन इटसेल्फ 6,000 किलोमीटर चला यार उस आदमी. रोज का 25 किलोमीटर 67 चलता था यार. उसके घुटने मैंने देखे यार, ऐसा पूरे घुटने सूज गए उसके पैर यार. ठीक है, आप, मैं दोबारा से कहता हूँ, यू मे डिसएग्री यार, वो कॉमन आदमी को मिल रहा है, रास्ते पे चल रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से लेकर मुंबई, वो मेहनत कर रहा है. लेकिन वो कितना, देखिए, चाहे गांधी हो चाहे मोदी जी हो, वो 4-5% वोट लाते, बाकी का वोट संगठन को लाना है. मोदी जी दी आइसिंग ऑन द केक. मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर आप मोदी जी और राहुल गांधी में देखो, ज़्यादा फर्क नहीं है एज लीडर्स इन टर्म्स ऑफ मोदी जी हैज अ लॉट मोर एक्सपीरियंस. Now this is something most of people will not agree. No, so I'll explain it. No, I'll explain. Modi ji has a lot more experience, no doubt about it. Lot more experience. Rahul Gandhi had the opportunity to get that Which he experience. missed. Which he missed, like good long 10 years. But let's leave that aside. So Modi ji has a lot more experience. Rahul Gandhi has some experience as MP. I agree with you, he should have been a minister, but Modi ji has a lot more experience. But look at the other factors. Rahul Gandhi is younger, fitter. Does that really matter? It does, because when you're younger, you're fitter, you're sharper. Because I personally feel Rahul Gandhi had a very amazing opportunity to be a youth icon of this country 10-15 years back when he like entered politics. He was young, एकदम right time पे right चीज, मतलब सही जगह था अपना place. But somehow he missed it, botched it up, and this country found a youth icon in a 65-year-old Narendra Modi. I don't think he botched it up. I think those around him gave him wrong advice. But whose responsibility is to ensure that there are right people around him? That I agree with you. But you said something very interesting, 65-year-old prime minister. So what I'm trying to say is, now he's 72, मतलब that time he was 65. So that's what I'm saying. Now 72. So again, I'm saying is youth is important. It is. Yeah. So Rahul Gandhi is younger. I'm not saying it's better. I'm saying the advantages. Modi ji has a lot more experience. Rahul Gandhi is younger, fitter. He's much more empathetic. Empathetic. Lot more empathetic. Currently, if you ask me to pick a friend in between Rahul Gandhi and Modi, it is Rahul Gandhi any given day. Very empathetic. Absolutely. He will hear you. But then when it comes to picking a leader, वहाँ पे game changer. Now, what separates this good guy from the leader Modi? So both have good qualities. Yeah. Why is Modi a leader and Rahul Gandhi a good guy? Because the people around Modi and the people around Rahul. See, both are good guys. Yeah. Modi is also a good person. In his own way. In his own way, he's a good guy. Belief is Rahul Gandhi is a great friend. Yeah. Modi is a great leader, as per you. Yet, what is the difference? The difference is those around Modi ji and those around Rahul ji. Modi ji ke around hai Amit Shah, JP Nadda, Bhupinder Yadav. These are hardcore sharp guys, yeah, politicians. Yeah. Rahul Gandhi ji के अराउंड है सारे लेफ्ट रूटर्स, सारे अपने JNU की दुनिया में. पर ये बात तो वो अपने टाइम से हो गई ना, अब तक उनको चेंज कर लेना चाहिए था. अपने सोसाइटी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत सकते. ये अब मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी के खिलाफ जो वायनाड में चुनाव लड़ रही है, वो उनका नाम है वो एनी राजा, वो डी राजा की वाइफ है, लेफ्ट. डी राजा, मैं इसको काटूंगा मैं, नहीं हटेंगे. इतने बड़े मास लीडर है, इतने बड़े मास लीडर, इतने बड़े मास लीडर, इतने बड़े मास लीडर, अगर दिल्ली में चले ना तो रिक्शा में 4 लोग नहीं भरेंगे उनके साथ, 4 नहीं ला पाएंगे, पांचवा तो बहुत 4 मुश्किल से होगा उनके साथ. वो राहुल गांधी को एडवाइस दे रहे हैं, आप वायनाड से लड़ो जो सीट 65% वोट जीती. मैं अब ये नहीं कह रहा वायनाड से लड़ना चाहिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, अब उन लोगों को, लेकिन आप जितने भी डी राजा के फोटो देखोगे ना दिल्ली के अंदर जहाँ पे ऑपोजिशन है, और राहुल गांधी के बाजू में खड़े, काहे को इनको खड़े रखते हो? You have Rahul Gandhi, मतलब why don't you tell him all this? आपके नेताओं को खड़े रखो, उनको दूर खड़े रखो. दिस इज माय एडवाइस. मैं एडवाइस इनको संजय राउत की उसमें भी देता हूँ. आप जितने भी फोटो देखो संजय राउत स्टैंडिंग नेक्स्ट राहुल गांधी, नुकसान होगा. वो एक इमेज आया जब महुआ मोइत्रा जी को पार्लियामेंट से निकाला, आई फेल्ट वेरी बैड. सोनिया जी वहाँ बाहर खड़ी थी. Don't associate, keep yourself
और आपके नेताओं को आपके पास खड़े रखो। मोदी जी के पास उनके नेता खड़े होते हैं, या अगर कोई अलग नेता है तो बीजू पटनायक है, नवीन सीनियर लेवल हाँ, के नीतीश कुमार है, रिस्पेक्टेबल फिगर्स। हाँ, बीजू पटनायक जी के पार्टी से नवीन पटनायक जी है, नीतीश कुमार जी है, वो चीफ मिनिस्टर। उस डोंट कीप दी राजा एंड संजय राउत नेक्स्ट टू यू। दिस इज माय जेन्युइन एडवाइस टू राहुल गांधी। उसलिए बट आई थिंक ये एडवाइस आप बहुत बार बहुत जगह दे चुके हो, मतलब पब्लिकली दे चुके हो, तो आई एम श्योर पर्सनली तो दी होगी आपने। प्राइवेटली भी मैं सबको दिया। तो सुनते क्यों नहीं है? अब जो है सो है। बिकॉज एक टाइम पे राहुल गांधी जी की जो बहुत अच्छी एक टीम होती थी, क्लोज कोर टीम, अभी मोस्टली सारे के सारे साइडलाइंस पे हैं। I don't know कौन sideline. I don't know anything about his team. I have no idea. What I do know is those around him should introspect वो क्या कर रहे हैं। एक अगर वो जैसे कि एक दुग्गल साहब है उनकी टीम के अंदर, जो कभी सेफोलॉजिस्ट होते, कभी आरटीआई एक्टिविस्ट होते, कभी राजस्थान के बड़े किसान नेता होते, कभी हरियाणा के बड़े किसान नेता होते। ऐसे लोगों से आपको नुकसान होगा। कभी जाते ममता जी से टिकट की उम्मीद करते, फिर ममता जी नहीं देती तो कांग्रेस में आ जाते। फिर एक वो सुदेंद्र कुलकर्णी जिन्होंने अडवाणी जी का करियर खत्म कर दिया, वो अडवाणी जी को ले गए पाकिस्तान और जिन्ना की मजर पे सजदा लगा के कहने लगा इससे ज्यादा सेक्युलर उन्होंने अडवाणी जी का करियर खत्म कर दिया। मतलब पाकिस्तान जाना तो ठीक था, बट ऐसे लोग अगर सेक्युलर बोल के गड़बड़ कर दिया पूरा। ऐसे लोग अगर आएंगे ना, ये उनको ये लोगों की जरूरत नहीं। ये वो देखिए कांग्रेस में बताता हूँ क्या हो रहा है, इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए। ज्योतिरादित्य कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, हेमंता बिस्वा जा रहे हैं। यू कैन अग्री डिसएग्री, मैं उनकी बहुत सारी बातों से अग्री नहीं करता हूँ और मैं समझता हूँ गलत है, उनके पोस्ट को शोभा नहीं थी, बट आई एम टेकिंग ऑन अ प्रिंसिपल। जो लोग जा रहे हैं कांग्रेस से, वो ज्योतिरादित्य, हेमंता बिस्वा, जो भी। कौन आ रहा है कांग्रेस के अंदर? कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा। एग्जैक्टली ये सही बोला। और ये भी नहीं दिखते कांग्रेस में, फिर जाके टीएमसी के अंदर। दे आर हार्डकोर अपॉर्चुनिटिस्ट ना एंड ऑफ द डे। मतलब जहां जिस शत्रुघ्न सिन्हा को भाजपा ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया भाजपा ने, लिटरली हाँ सब कुछ दिया, बिल्कुल दिया। वो उस भाजपा को छोड़ते कांग्रेस में है। कांग्रेस में आके कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ उसकी वाइफ के लिए प्रचार किया लखनऊ में 2019 में, और फिर टीएमसी में चला गया। उसको भाजपा ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया उसको? पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं था उनका। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा पटना में भाजपा के सिंबल पे जीते थे, नॉट बिकॉज ही शत्रुघ्न बिल्कुल। सिन्हा। वो अगर वेस्ट बंगाल में जीतेंगे टीएमसी के सिंबल पे जीतेंगे, नॉट बिकॉज ही शत्रुघ्न सिन्हा। इस चीज को नोट किया जाए। पटना में इफ आई रिमेंबर रविशंकर प्रसाद ने हराया था ना उनको, ही वाज लाइक अगेंस्ट हिम 2019 में। तो मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ कि जब आपको एक संगठन सब कुछ देता है, और दूसरी चीज़ है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिस्ट। जो लोग ने इस पार्टी को समाप्त किया है, जो लोग को जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया है, अब समय आ गया है कि आप इस पार्टी को क्या दे सकते हो। आपने कुछ नाम लिए, अभी समय आ गया हर एक वरिष्ठ नेता को पार्टी के लिए सड़क पे उतरना होगा, लड़ना होगा, चुनाव लड़ना होगा। अब आप वो एसी रूम में बैठकर नहीं कह सकते स्ट्रैटेजी। राहुल गांधी सड़क पे 10,000 किलोमीटर चल रहे, मणिपुर से मुंबई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। वो इनमें से कितने नेताओं ने 10,000 किलोमीटर? उनको करना होगा, उनके साथ परिश्रम करना होगा, सीट पे लड़ना होगा, एक एक लोगों को मिलना होगा, आपकी बात करनी होगी, देश की बात करनी होगी। आई डोंट सी, मतलब स्पेशली जो जहां मैं रहता हूँ आसपास, मतलब आई डोंट सी पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, कांग्रेस लाइक लीडर्स ऑन द स्ट्रीट्स। जबकि इलेक्शन हुआ है, अभी तो जस्ट असेंबली इलेक्शन हुआ है पूरा, जितना एफर्ट लगना चाहिए था नहीं लगा है। वो सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। मतलब आई कांट रियली कम टू से कि मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बने एज ऑफ नाउ एटलीस्ट, बट आई डू वांट अ स्ट्रांग कांग्रेस। एंड आई थिंक वो कुछ जो ये नेता है, पुरानी नेता, वो 1990s के पॉलिटिक्स में स्टक है। तो क्या होता है, या कुछ लेफ्ट के पॉलिटिक्स में, तो क्या हो गया, जैसे मैंने एक बार ट्वीट भी किया था, एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता, वो सबसे बड़े स्टेट के इंचार्ज है, तो उनको कुछ बाइट देनी थी मीडिया को। वो उसने मीडिया को अपने 5 स्टार होटल के कमरे में बुला के पलंग पर बैठकर बाइट दिया। आप एक परसेप्शन सोचो कि जिस प्रदेश में आपका कोई सीट नहीं है, एक आध 2 सीट है, जिस प्रदेश में की वजह से केंद्र में सरकार बनेगी, उस प्रदेश का इंचार्ज एक 5 स्टार होटल के रूम के अंदर बेड के ऊपर मीडिया को बाइट। एग्जैक्टली। एंड देन इतनी समझ तो मुझे भी है ना। आप मेरे ऑफिस में आए तो मैंने यहाँ पर बेडरूम में नहीं, यहाँ पर हम पॉडकास्ट यहाँ कर रहे हैं, इतनी समझ मुझ में भी है ना। वो तो मैं से कहीं बड़े नेता है। अब बेड के ऊपर कोई बाइट देता है मीडिया को? बेड पे बैठे हुए, बेड पे बैठना अपने आप में ऑकवर्ड है, ऊपर से 5 स्टार में करना अपने आप में ऑकवर्ड है, बिकॉज इफ यू हैव टू अपील टू अ लार्ज वाइडर मास। आपको 5 स्टार में करना था। 5 स्टार में बैंक्वेट हॉल है, वहाँ नहीं दे सकते थे भाई। 5 स्टार में बिजनेस सेंटर्स होते, वहाँ नहीं दे सकते थे भाई।
और मेरा जैसा पॉलिटिशियन होगा अगर थोड़ा बहुत मैं दिमाग लगाऊंगा, आई इंश्योर कि मैं स्ट्रीट पे खड़े होकर 4 आदमियों के बीच में छोड़ दो, so that I build that image. मान लो अर्जेंट बाइडे नहीं है, 5 स्टार के अंदर बिजनेस सेंटर बिल्कुल है, सब कुछ है, क्यों आप बिजनेस सेंटर बुलाते, आपके फोन के ऊपर 2 राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी का फोटो निकालते, होटल लाल करते, प्रिंट करते, पीछे रखो, बिजनेस सेंटर में खड़े रहते, बाइक लगते, सब लगता है आप कांग्रेस के ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं। उतना तो कॉमन सेंस, बेसिक स्ट्रीट स्मार्टनेस, स्ट्रीट स्मार्ट करना है अपने को भाई। कौन सिखाएगा इनको? ये बात है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। बेड के ऊपर बैठ के आपने बाइक लिया 5 स्टार होटल के। I genuinely want a strong opposition because that is a very basic मतलब for democracy to be successful वो तो basic requirement है ना। अगर आपका, और वो कोई भी हो, मतलब जैसा कि आपने कहा you don't like कंगना but still she is right to say what she wants बिल्कुल to say। right है उसका। वैसे ही I might not like the Congress and the India alliance but then they should be strong enough to keep these guys in check। पर वो that is the sad part कि वो नहीं हो रहा है ना यार। और यहाँ पर बीजेपी है अपना करते जा रही है जो ड्रकोनियन मेजर्स है, और लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी अगर दोबारा से आई इस मेजॉरिटी के साथ वो क्या करेगी। ये जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ये वहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, सबके फंडामेंटल राइट्स जाएगी। एक चीज मतलब आई पर्सनली ऑल्सो डू नॉट लाइक कि समहाउ बीजेपी सपोर्टर्स, मतलब जो मैं भी हूँ टू ए लेसर एक्सटेंट, हैव कम टू एक्सेप्ट व्हाटएवर बीजेपी डज इज लाइक एक्सेप्टेबल। मतलब मणिपुर पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपकी कोई भी किसी भी आप यू माइट लीन टू व्हिचएवर वे यू वांट बट देन योर ब्लड शुड बॉयल ideally when you look at the video, and somehow people find ways and means to justify that also. You know in Manipur, कैसे कर सकते हो यार? I'll tell you 3-4 things. The kind of insurgency going on in Manipur didn't happen in Kashmir or Punjab at the peak of insurgency. उससे worst हो रहा है। मतलब it's been so long, it's been almost 6-8 months, वो चले जा रहा है, मजाक हो रहा है कोई? जिन लोगों ने हमारे असॉल्ट राइफल्स जो रिबेल्स ने लिए कैप्चर किए हैं, जो चीने आधार कार्ड छोड़ते कैप्चर किए। आप जानते हो ये बात? आप जानते हो कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, उसके ट्वीट्स डिलीट करवाए गए थे। एन बीरेन सिंह हैज अ जॉब स्टिल, मतलब वो अपने आप में जॉब, मतलब अच्छा इतना होने के बाद यू आर स्टिल द चीफ मिनिस्टर। 3 या 4 मई को वो इंसिडेंट हुआ जो 2 महिलाओं को नंग परेड करवाया गया, जिसके एक हस्बैंड ने कारगिल में लड़ाई लड़ी। गृह मंत्री जी अमित शाह जी जाते 27-28 मई को मणिपुर के अंदर। FIR क्यों रजिस्टर नहीं हुई? FIR क्यों जुलाई में रजिस्टर हुई या जून में जब वीडियो आया? बीरेन सिंह कम्स ऑन कैमरा एंड सेज ऑन टीवी, हमने इसलिए इंटरनेट बंद किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे ऐसे ये वीडियोस बाहर आए, क्योंकि कई सैकड़ों महिलाओं को नंग परेड किया गया। ये प्राइड, इज दिस अ मैटर ऑफ प्राइड? मणिपुर हैज मोर इंटरनेट कट देन यूक्रेन, दिस इज फेसिंग अ वॉर। इज दिस हाउ इट शुड बी गवर्न्ड? आप कह सकते हो कि ये चाइना का इन्फ्लुएंस है, भूटान का है, म्यांमार का है, जो भी आप कह रहे हो, नॉट भूटान सॉरी, चाइना म्यांमार। तो आर्मी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसकी है? राहुल गांधी की है? क्या राहुल गांधी की रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंड ऑफ द डे मतलब स्टेट मैं उस मीडिया में नहीं हूं कि मैं अभी ऑपोजिशन का क्वेश्चन पूछूं। माय जॉब इज टू आस्क, एंड यू आर इफ आई हैव टू आस्क आई हैव टू आस्क द गवर्नमेंट ना। एंड यू आर टेलिंग, यू हैव द गट्स टू टेल द ऑपोजिशन कि आप गलत कर रहे हो, यू आर रॉन्ग। और इसके अलावा इन द पीक ऑफ इंसर्जेंसी, यू नो, वहां पर आपके व्यूअर्स को समझने के लिए 2, मणिपुर राइफल्स इज द मणिपुर पुलिस एंड आसाम राइफल्स is under the paramilitary forces, but they comprise of members of the Indian Army. So the Indian Army is the Assam Rifles, who are sent to protect. Manipur Rifles, the people did not help the Manipur police, did not help the Indian Army to come in to settle the issue. This is an official complaint by the Indian Army. Indian Army के statements पढ़ो मणिपुर के ऊपर. They said we've never seen such a situation. This is an army that is excellent at handling insurgents. Of course, मतलब उनका काम है, they've been doing it so well. They've said we haven't seen a situation like this anywhere in the country. आप मुझे बताओ where at the peak of insurgency, हाल में एक टॉप पुलिस अफसर किडनैप हुआ मणिपुर के अंदर। पुलिस अभी जस्ट हुआ, मैंने सुना। DG लेवल का, अगले दिन उसको फिर वो DG लेवल के लिए गए वापस। ये कश्मीर में हुआ है, ये पंजाब में हुआ है। What is going on in this state? How can you allow it? And how the prime minister not responsible? Use as much force as you have to do, whatever you have to do, but you have to just, मैं कहता हूँ कि शांति नहीं कायम हो पा रही, कोई बात नहीं, सन्नाटा कायम कर दो एक बार। मतलब इतना खौफ होना चाहिए, everybody should be just like their pants and just be शांत। Think about उसके बाद पूछेंगे किससे क्या करना है। Think about the people of Manipur. Quite literally, मतलब for this long, मतलब मजाक 2-4 दिन हो जाए वो अपने आप में बहुत बड़ा ट्रबलसम है। मतलब this is like multiple 6-8 महीने, पता नहीं कितने हुए, ज़्यादा, मतलब ज़्यादा, इनफैक्ट साल हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर वाज कैंपेनिंग इन कर्नाटका, होम मिनिस्टर वाज कैंपेनिंग व्हेन दिस वाज हैपनिंग. So exactly. So that is something I have a problem with. As in like what happened with Maldives? इतने hardline support नहीं हो सकते. Maldives. Maldives,
somewhere you have to understand कि probably it's a different country, Doesn't the matter. government Doesn't changed. matter. Doesn't अभी matter. they are a democratic country. What was our raw desk doing? उनका प्रॉमिस ही था ना, हम इंडियन आर्मी को बाहर निकाले, एक एक आदमी को. रॉ डेस्क क्या कर रहा था? रॉ डेस्क, हमारा रॉ डेस्क क्या कर रहा था? उनका तो कैंपेन ही था ऑफिशियल. Of course, उनका their position. But then if their people elect a party like that, of course you have to manage it, and they are trying to manage it whichever way. मोदी जी लक्षद्वीप जाके कर ही रहे, कुछ ना कुछ जोड़ दे ही रहे. मैं टूरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ. Maldives is extremely important for strategic. Absolutely, location जो है वो बिल्कुल एकदम. How can you have China's influence there? जब उन्होंने चुनाव चाइना के नाम पे लड़ा, what was your raw desk doing? What was our raw desk doing in Nepal जब वो इशू हुआ, हमें ब्लॉकेट करना पड़ा, जो मेडिसीज का, जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया उन्होंने. See, where you give Modi ji credit, you must. तो फिर you have to also ask questions here. That is precisely the I problem. gave him credit agree. with Bangladesh. Fabulous our relations are with Bangladesh. It is our most important neighbor. It is our strongest friend. फिर यहाँ बीजेपी के पॉलिटिशियंस लोगों को बांग्लादेशी कहती गाली देते. Bangladesh is India's best friend in our neighborhood. Sheikh Hasina stood by Modi ji. Problem Modi is ji not stood with by her. Bangladesh. Problem is with people who have entered illegally. They might Correct. have come from Bangladesh, so they Correct. are called Bangladeshi. Correct. But problem with those people, not with the country as such. Correct. So that's in that they, as per the government, they've entered illegally. That's the government viewpoint. Though we have the Assam Accord, etc. Who borders the patrol? Who patrols the Of course, border? essentially BSF, Under whom is Home it? Ministry, Under whom is it? Home Ministry, Amit Shah. How can you blame? In this. No, but Amit Shah has been there for like 10 years. अरे This immigration has happened like for. to now you can't be abusing people, huh? If whatever. Of course, I agree. मतलब abusing का तो कोई concept ही नहीं है. मतलब abuse तो क्यों ही करना है किसी को? Now, whatever legal process you want to do. you do the legal process and remove them. Exactly. How many have you Simple, removed? Less than what UPA removed. Abuse करने का. How many you removed? Less than what UPA removed. They removed less. क्यों? क्योंकि अगर कोई आ गया है, उसने तो आधार कार्ड ये करता जुगाड़ करते यहाँ रुक गया. अब तो 10 साल से ज्यादा हो गया. अपने 10 साल में कुछ इन्होंने कब निकाले? अच्छा, चाइना को देख लो जो हमारा वहाँ पर हुआ इन द पीक ऑफ कोविड. डू यू नो दैट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर व्यूअर्स टू नो, every year between March and April in Ladakh, India and China do military exercises. Every year. India and China. India and China do military exercises. Joint military exercise. No, not joint. They do theirs. Okay, India that, does ours. that I understand. ठीक, मुझे लगा joint. नहीं. वो अपने करते हैं, हम अपना करते हैं. दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं. On their sides of the border. perceived border. Perceived border. Yeah. And they do military exercises. तो China is a build up, India is a build up. Military exercise होता, build up खत्म होता, and then the normal patrolling starts. In 2020, India did not do the military exercises owing to COVID. So we were doing Operation Namaskar, and China continued to do the military exercise. When you knew China was doing the military exercise, shouldn't it have been our duty to do our build up so the eyeball to eyeball confrontation would have been in the beginning? We did not do it. So many satellite images went to the Home Ministry that the build-up is happening. That area is bordered by the Indian-Tibetan Border Patrol Force, which reports directly to the Home Ministry. They sent 17 to 18 letters that there is a build-up happening. We were doing Shaheen Bagh mein button dabana and Delhi elections, and subsequently COVID happened after that, after Delhi elections. Shaheen Bagh. Button dabane ke baad COVID ho gaya, and we were doing COVID. Exactly. There was a build-up. Because even China or India, to move a heavy machine doesn't move in 1 second. It takes months for a build-up to happen. So the build-up had started around Feb. Satellite images came in, letters came in, March, April, the build-up happened. And we decided not to do a military operation. So military operations, for your viewers to understand, we'll do on our side, they'll do on their side, but it'll be eyeball to eyeball so that equal, so that nobody can. The idea is to just sort of. So it's both are checkmated. आप आपके एरिया में करो, हम आपके करो, और दोनों साथ में निकल जाएंगे. We didn't do it. We knew they were doing it. We knew it. Probably they were busy with COVID. मतलब. Which was what it is. We knew they were doing it. Shouldn't it have been our responsibility to be more alert? 20 people, including Colonel Santosh Babu, lost their lives. भाले हमने उनके 400 मारे बाद में, हमारे 20 मरे या नहीं मरे, शहीद हुए या नहीं हुए. Is it not the government's responsibility? Should the government not apologize to the people of this country for it? 40 साल में एक व्यक्ति नहीं मरा था. Honestly, governments really haven't really apologized as much as they should have. I agree with you. Any government in any country, forget India. I agree with you. But then don't say this is a new India. Then don't say it's a new India. Then say we are exactly like everyone else. Then don't do this dog of being a new India. What I'm saying is, then say we are exactly like how Congress was. फिर देखो आपको मिलती 300 सीट. फिर बोलो भाई जो कांग्रेस ने किया हम वही करने वाले. They are going to get nothing new. Then don't lie to us that you're giving something new. That's all I'm making a point.
Fair enough. मतलब Who is responsible for those 20 people being martyred? I am saying you knew there was a build-up. You knew satellite images. Yeah. The force told you there's a build-up. Shouldn't you have then got alerted and stopped your COVID operation and built it up? And after 20 people were martyred, you built it up. You anyways built it up. So couldn't you have done that when the operation was happening? I'm not saying it's a Malifide mistake. Yeah. I'm not blaming them. I am not saying the Prime Minister had bad intentions for India. probably No they Prime did Minister. not realize that this will But it is a get mistake. into that. But it- error of judgment maybe. मतलब they could Correct. have done better. So then- Agree? हाँ. That's all I'm saying. I am not saying he had a Malifide intention. No Prime Minister does. No, Neither no did Prime Minister Nehru. would ever have. Neither did Yeah. Nehru have. Neither does Modi ji have. No Anybody Prime Minister wants to. accusing a Prime Minister of like a malified intent in such matters, वो तो मतलब Which आप- they do with Nehru ji. हाँ. Which they do with Nehru ji. They do it. Okay. But leave it aside. I don't think anyone has. I don't think Modi ji. I think Modi ji is a patriot. I think Modi ji does love India. I do believe it. all Prime Ministers All Prime till date Ministers. And have at that been, post, you मतलब, cannot हाँ, dislike yeah. the country. But there was an error made. If not from the Prime Minister's office, at least from the Home Minister and the NAC's office. Shouldn't the country shouldn't the BJP own up responsibility? Isn't the BJP responsible? That is not their character somehow. मतलब I come to and that's that is my the- one of my problems with that's- BJP. that's- They don't own up anything. मतलब as in That's like the problems, That's the the wrongs. issue. They That's the don't. issue. And somehow इतना बड़ी electorate has come to be okay with it. वो ज़्यादा बड़ी problem है. That's- Because वो ज़्यादा बड़ी problem है. As long as because that is precisely why they can get away with it. Because if we ask questions कि भाई अब क्या, then they will own up. Because अभी वो चल रहा है उनके voters को फर्क नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता बात खत्म हो गई. So that is precisely the That's problem. precisely right. So thank you. Thank you. I seriously want a strong opposition to sort of appear. Okay? I personally don't see much hope, at least in this election. So what is your like some tips कि भाई वैसे तो आपने काफी टिप्स दे दिए हैं, मतलब पूरा पॉडकास्ट ही बेचारे ऑपोजिशन को आप टिप्स ही दे रहे हो कि क्या करना चाहिए और वो सुन नहीं रहे हैं. सरकार को गाली दे रहा हूँ, ऑपोजिशन को टिप दे रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा. कोई नहीं सुन रहा. सरकार सुन रही है. Essentially that's what happens. मैं बीच में सेंटर में हूँ. कि like हाँ, सरकार कह रहा है विपक्ष वाला है, विपक्ष कह रही है सरकार वाला है, कोई सुन नहीं रहा. कोई सुन नहीं रहा है. So happens because So solution is अगर कोई चेंज नहीं होता, then we'll become the change. as in like you contest elections. That's precisely what I recommended. Let's see. Okay. As Krishna says, कर्म कर, फल की चिंता न कर. Exactly. So कर्म करो, फल की इच्छा मैंने कहा कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा ना. You have to file the papers. मतलब nobody else can. All right, Tehseen. Thank you very much. Thanks, It was an absolute pleasure thank having you you so much. On the show. And I'm sorry. Absolute pleasure. Thank Sorry you if very much. Arvind Kejriwal ji thinks so. Too much of TV commitments. So Not an issue, sir. I mean, you still made time. Thank you very much. thank you for coming. Thank you. Thank you. Hi. Thanks for watching. एपिसोड पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आई होप आपको पसंद आया. अगर हाँ तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अगर ना तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिए. हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. एक रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट. थैंक यू.